Hello and welcome back to my channel Inspired with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually today we have to discuss a very important topic, that is the burning issue of the today's farming, and nowadays our scientists and our government are also preferring and promoting this type of farming. So guess what today we are going to discuss? Yes, exactly. We are going to discuss the next topic from the syllabus of standard 9, that is the organic farming. बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग्स जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे पूरी बायोस्फीयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बैलेंसफुल है, इको फ्रेंडली है और नॉन अफेक्टिंग इशू है, जिसका कि कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही हमारे ऊपर, ना ही उन सभी ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर से उग रहे चीज़ों पे, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वुड feed on that or consume it as their food. Okay guys, so today we are going to discuss about the organic farming, जिसमें हम देखेंगे कैसे ऑर्गेनिक तरीक़ों से, ऑर्गेनिक का मतलब जब भी आता है यानी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, नो केमिकल्स, नो सम अदर सब्सटेंस, जस्ट वी आर डूइंग द थिंग्स विच व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित चीज़ों का उपयोग करके हम कैसे अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन कर सकते हैं, कैसे अपनी फार्मिंग को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं, और कैसे सोसाइटी के लिए ही नहीं पूरे इकोसिस्टम के लिए वो बेनिफिशियल हो, ऐसी चीज़ों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो गाइज, लेट्स कम ऑन द टॉपिक विदाउट डूइंग एनी डिले. बट बिफोर डूइंग दैट, आई जस्ट वांट टू say you or request you one thing, that please subscribe the channel. I just want to increase the number of my subscribers because my channel is a new channel and I just need your support. Please share it with your friends and ask them for subscribing the channel. That's why you can get the new topics related to the biology on my channel if they are a student, and if you are related to the any field of the study, you are preparing for the competitive exams, then also it is very important for you just to understand the basic knowledge of that topic because बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट का रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. और स्पेशली तो मैं 9th की सिलेबस को कैरी ऑन कर ही रही हूँ, तो फिर उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और फिर गाइज, अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं विदाउट डूइंग एनी डिले. लेट्स कम ऑन द टॉपिक. जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग विच आर नाउअडेज डन. Recently we have seen its example in the Simla, that where the government of Simla had promoting this type of farming because they are using everything in the organic way, and they have gotten the high yielding capacities of the crops or the grains. So that is the example, that is one example how can we perform all this type of farming and how can we keep our ecosystem also in a proper way or in a proper balance. Okay guys, so cultivating of land without conserving the soil fertility. अगर हम सॉइल के प्रोडक्शन का ख्याल नहीं रखें, उसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखते कि उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर लॉस हो गई है, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखे बिना हम बार बार उसी क्रॉप फील्ड पे फार्मिंग किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्रॉप फील्ड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट होगा. और वंस द टाइम विल कम दैट इट विल बिकम अ डिजर्ट, वो एक ऐसे बैरन एरिया में चेंज हो जाएगा जहाँ कोई कल्टिवेशन नहीं हो सकती. तो it needs a reform also, that for regaining the fertility of the soil and balance in ecosystem is a very important issue, just to keep the whole ecosphere in a proper channel and in a proper way. Just can all these cycles, different type of nutritional cycle can be go on. Okay guys, so just to enhance the production, chemically what we do, we are nowadays using the herbicides, pesticides, फंगीसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स को अपने क्रॉप फील्ड से दूर रखने के लिए हम इन सारे केमिकल्स का नाउअडे आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर हम जितने भी क्रॉप फील्ड पे या फिर ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए या फिर फीडिंग के लिए, तो उन सबों को क्या हो रहा है, उन लोगों को उस केमिकल से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, और जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों के लिए हार्मफुल है. सो गाइज़, इन सबों में ये केमिकल्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, पहले हम ये समझ लें. ये क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकली बैलेंस जो है हमारे इकोसिस्टम का, जैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस है, एनर्जी का फ्लो है, फूड चेन है, फूड वेब्स है, इनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. यानी बैलेंस्ड जो है इकोसिस्टम का, उसे ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर हम ज़्यादा केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो. ओके गाइज, सो
इनसे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है, और फिर ऑर्गेनिज्म जो सॉइल पे डिपेंडेंट है, सॉइल में रहते हैं, जो जिनका सॉइल हैबिटेट है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुली अफेक्ट करते हैं. सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट आर द harmful effect if we are using all these different types of chemicals just to enhance the productivity or the fertility of the soil. Okay guys, the second one is the increase in the occurrence of cancer. केमिकल्स का ज़्यादा यूज जो होता है वो हमारे लिए या फिर जो भी डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल पे उसे फीड करते जाता है, जिनके लिए वो न्यूट्रिशनल चीज़ बनने वाली है, उन सबों के लिए क्या होता है कि ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, और इससे बहुत डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो सकती है. मोस्टली कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा है. ओके गाइस, सो इन केमिकल्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप फील्ड में, अपने क्रॉप्स में, इन्हीं की वजह से क्या होता है, कैंसर जैसे डिजीज़ेज़ अक्कर हो सकते हैं. सो ये दूसरा था कि इसका कितना बैड हार्मफुल इफ़ेक्ट हम पे पड़ रहा है ये. और तीसरा जो है वो कंटामिनेशन ऑफ वाटर, यानी ये जितने भी न्यूट्रिशन में केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये डायरेक्टली रेन वाटर के साथ हमारे ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स होते हैं, और जस्ट ग्राउंड वाटर से हैंड पम्प, पॉन्ड्स, रिवर, चाहे जिस भी प्रोसेस से आप, जिस चैनल से भी वो वाटर आप तक आ रहा है, तो वो वाटर क्या होता है, उन सारे केमिकल से पॉल्यूटेड वाटर है, और उसको आप कंज्यूम करते हैं. तो वाटर में अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा है तो माइनर मात्रा हो सकता है आपको, और बहुत इटाई रोग हो सकती है, आपका किडनी, लीवर एंड ऑल ऑफ योर digestive system and different types of system, nervous system also can get affected with all these different type of chemicals. So वाटर में इनका ज़्यादा अक्रेंस होने से यूट्रिफिकेशन हो सकता है, फिर मैग्नीफिकेशन हो सकता है. डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है कि पॉल्यूटेड चीज़ जो होती हैं, या फिर जो पॉइजन होता है, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इन सारे केमिकल्स के, वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और लास्टली ये एक बहुत बड़ा वेरिएशन शो कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. सो बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है कि हम इन केमिकल्स का यूज़ कम करें. सो दिस आर द सम प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स to the society, to the environment and to the ecosystem. So we must have to practice some other, and that's why we are forced to do something other process just to enhance the productivity of the soil. So हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने ग्रेजुअली कंसर्न थे इस चीज़ों को लेके. उसके बाद इस प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ अटैम्प्ट्स किए गए, कितनी सारी एक्सपेरिमेंट्स हुई. उसके बाद क्या हुआ कि अल्टरनेटिव केमिकल एग्रीकल्चर के लिए कोई ना कोई दूसरा उपाय हमें ढूंढना था. तो फिर साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेटिव सोर्स खोजा, जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, सो गाइस, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ के पास हम लोगों ने एक दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स खोजा, जो कि था ग्रीन और दी इको फ्रेंडली फार्मिंग और द इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने क्या हुआ कि जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा है, जो बर्बाद जाते थे पहले, जिन्हें हम फेंक देते थे, उनका हम यूज़ करके क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स तैयार करते हैं, जिनको क्या अपने क्रॉप फील्ड में डालते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारे सॉइल्स को. और ये इकोलॉजिकल फार्मिंग भी इसे कहते हैं हम, और इसको क्या कह सकते हैं, या फिर इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके गाइज, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फार्मिंग सिस्टम है जिसमें कि हम लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर मिनिमम यूज्ड. ओके गाइज, और नॉट यूज्ड, जिनमें हम लोग इन सारे केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और उसके बावजूद भी हम अब चाह रहे हैं कि अपने क्रॉप फील्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिले और ज़्यादा हम उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख सकें. तो हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. जब हम केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उस फार्मिंग को क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं. तो इंस्टीड ऑफ द मैन्योर्स रिसाइकलिंग फ्रॉम द बेस्ट एंड द बायो फर्टिलाइजर्स, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट, वी आर जस्ट इन प्लेस ऑफ दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स नाउअडे नीम लीव्स या फिर टर्मेरिक्स आर यूज्ड इज द एट द बायो एंटीसेप्टिक्स. इनका हम लोग कीटनाशकों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, या फिर बॉइल्ड वाटर जिसमें नीम लीव्स है, इनका यूज़ कर रहे हैं इन केस टू जस्ट स्टोर द फूड ग्रेन्स. ओके गाइज, सो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है. अगर हम इसका यूज़ नहीं करें, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग इंसेक्ट्स को मारने के लिए, या फिर अपनी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को ही मेंटेन करने के लिए. ओके गाइस, सो अगर हम इन सब डिफरेंट टाइप की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या था हमने ये देखा. और फिर इनका हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है और इसमें हम लोग किस चीज़ों का यूज़ करते हैं. तो हमने देखा कि हम
ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे नीम लीफ का यूज़ कर रहे हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए भी हम लोग इसी टाइप का कुछ ना कुछ केमिकल्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हार्मफुल नहीं हो हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो बेसिकली जो फर्स्ट एडवांटेज है वो नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं होते हैं, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस जो अपना केमिकल्स का बैलेंस जैसे चलता है हमारे नेचर में वैसे ही बार बार रिपीटेड चलते रहता है। बट अगर हम लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं और केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो अफेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में हमारा ये नेचुरल बैलेंस जो है वो अफेक्ट होता है। इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है। ये है एडवांटेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और फिर एज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ हारमोनियस विद द नेचुरल इकोसिस्टम, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। दूसरा है कि सॉइल फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखता है। केमिकल्स एक्स्ट्रा हम कोई भी सॉइल में नहीं जाने दे रहे क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों का है। बस जो चीज़ हमें पेस्ट को मारने के लिए चाहिए उतनी ही चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फार्म यार्ड को। दैट्स वाई इट विल नॉट पॉल्यूट द सॉइल, इट विल नॉट पॉल्यूट द वाटर, सो इट इज़ ऑल्सो helpful in keeping the soil fertility preserved. Okay guys, so the next topic is harmful effect of the chemicals on the living organism are avoided. इसका यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। सो ये एक प्लस पॉइंट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का। एंड द लास्ट वन इज़ द पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉइल डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग whenever we are doing that, whenever we are using the organic farming, the way of organic farming, then it is not going to pollute our soil, air or ecosystem or water also. So guys, these are the benefits of or the advantages of the organic farming. Hope you all have liked this session. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for giving your attention to me. Thanks guys.